Hello students, hope you all are fine. Now we are doing the establishment of British Empire in India. What we are going to read in this chapter about the coming of the Europeans, conquest of Bengal, conquest of Mysore and other methods of annexation, and about a case study, dual governance in Bengal, about wars against Marathas and the claim of paramountcy. In search of sea routes toward the east, several western powers like the British, French, Dutch and Portuguese started sea voyage. They naturally became rivals of each other. In this struggle for power, Britain emerged victorious and transformed itself from a trading company to an imperialist nation that ruled India for nearly 200 years. सी रूट की तलाश में सेवरल वेस्टर्न पावर्स जैसे ब्रिटिश, फ्रेंच, डच एंड पुर्तगीज़ ये सी वॉयज यानी कि समुद्री यात्रा शुरू करते हैं और ये सारे राइवल्स बन जाते हैं एक दूसरे के, और स्ट्रगल ऑफ पावर में ब्रिटेन जो है वो जीत जाता है, जिसने इंडिया पर करीबन 200 साल तक राज किया. नाउ कमिंग ऑफ द यूरोपियंस. फर्स्ट इसमें टर्म है मर्सेंटाइज्म. Mercantilism, it means that a business enterprise makes profit primarily through trade, buying goods cheap and selling them at higher price. जो कोई भी ऐसा ट्रेड करना, कोई भी ऐसा बिजनेस करना प्रॉफिट के लिए, जो कहीं जगह से सस्ती चीज़ें खरीद के बाहर एक्सपोर्ट करके उनको हैवी प्राइस में, हायर प्राइस में बेच देते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मर्सेंटिलिज्म. जैसे कि ब्रिटिशर्स थे. मर्सेंटाइल ट्रेडिंग कंपनी इन दोज डे made high profit primarily by excluding competition. The competition could be from the companies either from outside or inside the country. In quest of mercantilism, the Portuguese were the first to reach India. They reached India following the footstep of Vasco da Gama. Vasco da Gama जो पहली बार इंडिया में आए थे, उनके पीछे पीछे बहुत सारे यूरोपियन ट्रेडर आए जो कि क्या बनना चाहते थे? मर्सेंटाइल बनना चाहते थे, जो क्या करना चाहते थे? इंडिया से सस्ते दामों में चीज़ें खरीद के और हायर प्राइस पे उन्हें बेचना चाहते थे, जिनसे उनको प्रॉफिट हो. तो पुर्तगीज़ फर्स्ट टाइम इंडिया में आते हैं. नाउ फॉर्मेशन ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. England, the English East India Company joined the race for control over Indian Ocean trade route on 31st December 1600 and acquired the sole right to trade with the East from a royal charter, written statement of rights of Queen Elizabeth I of England. This charter or the constitution gave the company a right to carry out trade with the East. The company began with modest trading outposts along the west coast of India. In 1601, it established the first factory at Surat. The factory did not manufacture any goods. It was used only as storehouse and provided residences for the factors which worked for the trader and their security personnel. The English were fully aware of the challenge they faced from the Portuguese, the Dutch and later the French. इस तरीके से जैसे कि पुर्तगीज़, डच और फ्रेंच सब इंडिया से ट्रेड कर रहे थे, इसी बीच ब्रिटिशर्स आते हैं एक चार्टर लेके, जो कि क्वीन एलिजाबेथ ने साइन किया था कि इंडिया में जाकर ये ट्रेड करो. ठीक है, तो उन्होंने फर्स्ट कंपनी इस्टेब्लिश की थी. कहाँ पर? सूरत में एक फैक्ट्री लगाई थी, जो किस लिए थी? यहाँ पर कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती थी, यहाँ पर सिर्फ स्टोर हाउस था. जो गुड्स इंडिया से लिए जाते थे उनको स्टोर किया जाता था, और जो ये ट्रेडर ट्रेडिंग करते थे उनके लिए एक जगह से रहने की वो जगह थी. नाउ इंग्लिश को पता था कि उसके सामने और भी काफ़ी चैलेंज हैं, जो ट्रेडर्स हैं यहाँ जो ट्रेड करने आए हैं. नाउ द किंग ऑफ इंग्लैंड सेंट इनवॉइस जॉन हॉकिंस इन 1608 एंड थॉमस रॉय इन 1615 to the Mughal court of Jahangir. By 1623, it had established factories at Ahmedabad, Agra and Musulipatnam. Surat, however, became the chief English settlement on the west coast. After 1680, there was a very rapid expansion of English settlement in India. It had also come into direct confrontation with the Mughal emperors. In 1691, Aurangzeb, by his farman, had permitted the East India Company to purchase
three villages of Govindpur, Sultanati and Calicut. On this site, the city of Calcutta, now Kolkata, was later built. A fortified factory was also built there and was called Fort William. In 1717, Emperor Farrukhsiyar, by his फरमान, exempted the British फ्रॉम पेइंग कस्टम्स ड्यूटी इन गुजरात एंड डेक्कन। और इस तरीके से जो ट्रेडर आए थे इंडिया में ट्रेड करने के लिए, उनमें जो ब्रिटिशर्स थे उनकी जो सूरत में कंपनी थी, सूरत में जो फैक्ट्री थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी, बहुत ज़्यादा टॉप पर थी ट्रेडिंग में। तो औरंगजेब के साथ वो हाथ मिलाते हैं और औरंगजेब एक फरमान, एक नोटिस जारी करता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो, उनकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने इस्टेब्लिश की है, वो टू परचेज 3 विलेजेस ऑफ गोविंदपुर, सल्तनती एंड कैलिकट। और इस तरीके से उस साइट पर कैलकटा बिल्ट होता है जहां पर एक फोर्टिफाइड फैक्ट्री बनाई जाती है जिसको फोर्ट विलियम का नाम दिया गया। एंड 1717 में जो एम्परर था फारुखशियार, वो एक फरमान जारी करता है जिसमें लिखा था कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो गुजरात एंड डेक्कन में कोई भी ड्यूटी, कोई भी कस्टम ड्यूटी, टैक्स पे नहीं करेंगे। नाउ अदर ईस्ट इंडिया कंपनीज, Portuguese and the Dutch and the French too spread their own influence and established their own East India companies and factories. The French formed their French East India Company in 1664 and set up its base at Pondicherry. The company later opened its factories at Mahe, Yanam, Karikal and some other places. Unlike the English company, the French company was directly under government control. The government provided military support and funds. The Dutch established the Dutch East India Company in 1602 and first set up its factory at Cochin on the Malabar coast in 1608. They continued to set up factories at various places along the Coromandel coast and Malabar coast well up to the beginning of the 19th century. और इस तरीके से जो पुर्तगीज़ थे, डच पीपल थे, वो भी अपनी छोटी छोटी कंपनीज इस्टेब्लिश करने लगे थे और 19th सेंचुरी तक ऐसी बहुत सारी ईस्ट इंडिया कंपनीज इंडिया में इस्टेब्लिश हो चुकी थी। नाउ राइवलरी अमंग यूरोपियंस। Initially, the Portuguese and the Dutch were in control of the sea routes. The British soon obtained its mastery over the Indian Ocean trade routes in the beginning of the 18th century. In India, factories were fortified to defend themselves against attack, not so much by the local people or rulers as by the rival European trading companies. इस तरीके से पूरे इंडिया में बहुत सारी कंपनीज इस्टेब्लिश हो जाती हैं, लेकिन जो ब्रिटिश थे वो बहुत जल्दी वो मास्टरी कर लेते हैं, सारे जितने भी इंडियन ओशियन ट्रेड रूट थे उन पर सारा कंट्रोल कर लेते हैं। और उस टाइम में क्या शुरू होता है, फैक्ट्रीज़ का फोर्टिफाइड करना, यानी कि उनकी चार दीवारी करनी शुरू हो जाती है ताकि वो अपनी फैक्ट्री को बचा सकें। कोई लोकल अटैक से नहीं, ना ही उनको रूलर से डर था, उनको किससे डर था, जो बाकी राइवल यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज हैं उनसे उनको डर था। After 1600 CE, each of main European powers, the English, the French and the Dutch, had formed their own trading companies and enjoyed the backing of their respective governments to carry on trade in East. The European trading companies began providing soldiers to local ruler and in turn they gained concession from their Indian rulers. It stimulated rivalries among the European powers. They were thus fully equipped to face any eventuality and finally used his armed might against the local ruler. और इस तरीके से जो वहाँ के लोकल रूलर थे उनको वो क्या करते थे, आर्मी प्रोवाइड करते थे जब भी उन्हें ज़रूरत होती थी तो, और लोकल रूलर उनकी क्या हेल्प करते थे, वो उन्हें ट्रेडिंग में हेल्प करते थे, उन्हें कंसेशन देते थे। इस तरीके से जो यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनीज थी वो क्या होती गई, स्ट्रॉन्ग होती गई। नाउ कंट्रोल ओवर सी रूट्स। An important cause of rivalries was the control over trade routes. The oceanic trade routes passed mainly through the Red Sea and the Persian Gulf. जो oceanic trade route था वो कहाँ से pass out होता था, Red Sea and Persian Gulf से। The overland routes passed through northwestern mountain passes. The Asian part of the trade was dominated by Arabs.
the Mediterranean part was in the hands of Italian merchants. By the 16th century, the English, the French and the Dutch became the masters of sea routes, and Francis Drake completed his voyage around the world in 1580. In 1588, English defeated the Spanish Armada. This victory provided great inspiration to English traders, and on December 31, 1600, the English East India Company had been established. The British control over the Indian Ocean trade was preceded by the massacre of Amboina in 1623. The soldiers of the Dutch East India Company had killed 20 English sailors as a result of intense rivalry between England and Holland in the spice trade with Spice Islands in Sumatra, Java in Molucca Island. और इस तरीके से जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने काफ़ी सोल्जर्स को द सोल्जर्स ऑफ द डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे उन्होंने ब्रिटिश 20 इंग्लिश सेलर्स को मार दिया था एज अ राइवलरी कॉन्फ्लिक्ट, और इस तरीके से इनके आपस में क्या चलती रहती थी, राइवल चलती रहती थी. द पुर्तगीज, फ्रेंच एंड ब्रिटिश इन इंडिया. The Dutch and the British, after the Amboina incident, had reached an agreement by which the Dutch never acquired any military bases in India. डच एंड द ब्रिटिश, जब ये अम्बोयना का इंसिडेंट होता है तो वो क्या करते हैं, वो एक एग्रीमेंट साइन करते हैं जिसमें लिखा था कि जो डच पीपल हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कभी भी कोई मिलिट्री बेस इंडिया में इस्टेब्लिश नहीं करेगी, ना कभी उसे एक्वायर करेगी. Their desire to colonize India was put to an end by the British in 1759 CE. इस तरीके से जो डच पीपल थे जो इंडिया को कंट्रोल करना चाहते थे, उनकी ये डिज़ायर ब्रिटिश लोग ख़त्म कर देते हैं 1759 में. द पुर्तगीज हैविंग captured Goa in 1510, brought Cochin under their control in 1515 and conquered Diu and Basin in 1534. In 1538, they also acquired Daman and controlled Salsette, Bombay, St. Thomas and near Madras and Hooghly in Bengal. They also had a considerable part of territory of Ceylon under their control. The Portuguese had also come to an agreement with the English outside the waters of India, recognizing the English right to trade in the East. इस तरीके से जो ब्रिटिशर्स हैं वो पुर्तगीज़ के साथ भी एक एग्रीमेंट साइन किया उन्होंने. द पुर्तगीज हैड गिवन द आइलैंड ऑफ बॉम्बे एज अ पार्ट ऑफ डोरी ऑफ कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा हु वॉज मैरिड टू प्रिंस चार्ल्स II ऑफ इंग्लैंड. और पुर्तगीज़ पीपल एज अ डोरी जो आइलैंड ऑफ बॉम्बे था वो उसको गिफ्ट कर देते हैं जिसकी शादी इंग्लैंड प्रिंस चार्ल्स II से होती है. बाय 1661 दे वर लेफ्ट विद इन द इंडियन टेरिटरी ऑफ गोवा, दमन एंड दीव, विच दे हेल्ड वेल आफ्टर द इंडियन इंडिपेंडेंस इन 1947. इंडिया हैड टू लॉन्च अ मिलिट्री कैंपेन टू फ्री दीज टेरिटरीज इन 1961. और इस तरीके से वो इंडिया को छोड़ देते हैं और 1961 में इंडिया एक मिलिट्री कैंपेन लॉन्च करती है ताकि जो उनकी कंट्री है, इंडिया जो हमारी कंट्री है, वो इस टाइप की टेरिटरी से फ्री हो जाए. विद द एलिमिनेशन ऑफ द डच एंड पुर्तगीज, द ओनली 2 यूरोपियन पावर लेफ्ट टू कम्पीट. अब सिर्फ 2 पावर रह गई थी, एंड फ्रेंच एंड इंग्लैंड. द फ्रेंच वर द लास्ट ऑफ द यूरोपियन पावर्स. फ्रेंच लास्ट थी, जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या हो जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं ट्रेड करने के लिए. एंड बोथ दीज पावर्स अल्टीमेटली fought for supremacy in India. Now, did you know? Goa became free from Portuguese rule in 1961 and only then it became a part of India. गोवा जो है वो पुर्तगीज रूल में थी, लेकिन 1961 में वो पुर्तगीज पावर से फ्री हो जाती है और इंडिया का एक पार्ट बन जाता है. Now, here is a case study about the Anglo-French struggle. Taking advantage of the decline of the Mughal Empire and the political instability in South India, the French and the British fought 3 wars to control the trade. These wars are called the Carnatic War. जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो रहा था और साउथ इंडिया में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, उस टाइम फ्रेंच और ब्रिटिश वो ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए दोनों में वॉर होती है जिसको कर्नाटिक वॉर का नाम दिया गया है. 3 लगातार वॉर हुई थी. फर्स्ट कर्नाटिक वॉर थी 1744 से 1748 तक.
And in 1742, a war broke out in European between France and England. The war also spread to India, where the British and the French companies clashed with each other. When the war ended in Europe in 1748, it ends in India too. और जब ये वॉर ख़त्म होती है फ्रेंच और यूरोपियन पीपल में एंड फ्रेंच और इंग्लैंड में, तब क्या होता है, इंडिया से भी ये वॉर ख़त्म हो जाती है. क्या इस वॉर के रिजल्ट निकलते हैं फर्स्ट कर्नाटिक वॉर के? फर्स्ट, neither side made by territorial gains, but the rivalry between two powers over trade and territory continued. कुछ भी इसका कोई भी टेरिटोरियल फ़ायदा नहीं होता, इवन दोनों पावर की जो ये ट्रेड के लिए लड़ाई थी ये कंटिन्यू रहती है. द वॉर एक्सपोज द वीकनेस ऑफ द रूलर्स ऑफ साउथ इंडिया. फर्स्ट कर्नाटिक वॉर से क्या पता लगता है कि जो साउथ इंडिया में रूलर थे वो बहुत वीक थे एंड इट वॉज शेमफुल दैट द नवाब ऑफ कर्नाटक हैड फेल्ड टू स्टॉप अ वॉर इन हिज ओन टेरिटरी. और नवाब ऑफ कर्नाटक जो था उस टाइम, नवाब ऑफ कर्नाटक था, वो इस वॉर को, जो इन दोनों के बीच में वॉर चल रही थी, उसको स्टॉप नहीं कर पाता है. थर्ड क्या पता लगता है हमें? Dupleix, the governor of the French company, was very capable and foresighted. He decided to take full advantage of the unstable political condition of South India and increase French political influence in South. इसका फ़ायदा कौन उठाते हैं? फ्रेंच कंपनी उठाती है, जिनको ये पता लग जाता है कि वहाँ के जो नवाब हैं वो बहुत वीक हैं, तो इस तरीके से वो अपना फ्रेंच पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है साउथ में बढ़ा देती है. नाउ अबाउट द सेकेंड कर्नाटिक वॉर, जो 1748 से 1754 तक हुई. 1748, when rulers of both Carnatic and Hyderabad died, Dupleix decided to intervene in the wars of succession that had started both in Carnatic and Hyderabad and set up puppet rulers in these two states who would serve in the interest of the French. Dupleix क्या डिसाइड करती है कि जब वो नवाब कर्नाटक एंड हैदराबाद के जो रूलर थे, नवाब थे, उनकी डेथ हो जाती है, तो डुप्लेक्स डिसाइड करती है कि कर्नाटक एंड हैदराबाद दोनों जगह पर वो क्या शुरू करेंगे, वॉर शुरू करेंगे और वॉर को एक नतीजे तक पहुंचाएंगे. वहाँ पर पपेट रूलर वो असाइन करते हैं दोनों स्टेट में, जो एक तरीके से फ्रेंच के हाथों की कठपुतली थे. उसके बाद इस वॉर का, सेकेंड कर्नाटिक वॉर का क्या रिजल्ट निकलता है? The French government accepted defeat and signed a peace treaty. फ्रेंच गवर्नमेंट हार अपनी एक्सेप्ट कर लेता है और एक पीस ट्रीटी साइन करता है. दे ऑल्सो एक्सेप्टेड द ब्रिटिश डिमांड दैट डुप्लेक्स मस्ट बी सेंट बैक टू फ्रांस. This was a big blow to the future of the French company in India. The Second Carnatic War boosted the prestige of the British and led to the establishment of British control over Carnatic. इस तरीके से जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपनी सुपरमेसी सेकेंड कर्नाटिक वॉर में शो करते हैं, प्रूव करते हैं. नाउ थर्ड कर्नाटिक वॉर, जो 1756 से 1763 के बीच हुई. The temporary peace between the British and the French companies ended in India when another war broke out between them in Europe. यूरोप में अब इन दोनों के बीच में, जो इंडिया में एक ट्रीटी ऑफ पीस के साथ ख़त्म हो जाती है, यूरोप में फिर से शुरू होती है जो ब्रिटिशर और फ्रेंच की वॉर थी. And at the very beginning of this war, the English managed to gain control over Bengal after the victory of the Battle of Plassey in 1757. And now the British could use the rich resources of Bengal to overpower the French. The French, on the other hand, were handicapped due to constant shortage of funds. फाइनली जब बंगाल को ब्रिटिशर्स कैप्चर कर लेते हैं तो वहाँ जो भी रिसोर्सेज थे, वो वेल्थ थी, उसको वो यूज़ करते हैं इन वॉर में. लेकिन दूसरी तरफ फ्रेंच क्या थी, हैंडीकैप्ड हो चुकी थी, उसके पास शॉर्टेज ऑफ फंड था. फाइनली द फ्रेंच वर डिफीटेड इन 1760. द वॉर इन इंडिया एंडेड विद द एंड ऑफ वॉर इन यूरोप इन 1763. थर्ड कर्नाटिक वॉर के क्या रिजल्ट निकलते हैं? द थर्ड कर्नाटिक वॉर shattered French dreams of building their empire in India. फ्रेंच का जो ड्रीम था कि एक एम्पायर वो इंडिया में इस्टेब्लिश करेंगे, उसको ब्रिटिशर्स ख़त्म कर देते हैं थर्ड कर्नाटिक वॉर में. एंड द इंग्लिश नाउ इस्टेब्लिश देयर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ओवर कर्नाटिक. Freed to all European rivals, they could now get the task of conquering India.
जो ब्रिटिशर्स थे, इंग्लिश पीपल थे, उन्होंने अब अपना कर्नाटक पर इन्फ्लुएंस बना लिया था, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस स्टैब्लिश कर लिया था, एंड फ्रीड ऑफ ऑल यूरोपियन राइवल्स दे कुड नाउ गेट फॉर द टास्क ऑफ कॉन्क्यूरिंग इंडिया। अब उन्होंने अपनी पूरी आज़ादी के साथ इंडिया को कॉन्क्यूर करने की प्लानिंग शुरू कर दी थी। नाउ डिड यू नो the British opened their first factory or trading depot in the साउथ इन मुसल्लीपट्टनम इन 1611। ब्रिटिशर्स ने फर्स्ट फैक्ट्री अपनी कहाँ पर इस्टेब्लिश की थी? साउथ इन मुसल्लीपट्टनम इन 1611, बट दे सून शिफ्टेड देयर सेंटर ऑफ एक्टिविटी टू मद्रास whose lease they obtained from the local Raja in 1639. Here the British built a small फोर्ट अराउंड देयर फैक्ट्री कॉल्ड फोर्ट सेंट जॉर्ज, और यहाँ पे मद्रास में उन्होंने एक छोटा सा फोर्ट बनाया जिसको फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जाना जाता है। नाउ कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। बंगाल को जो ब्रिटिशर्स ने कैप्चर किया, कैसे कैप्चर किया? After the victories in South, the overgrowing ambitions of the British led them to wage wars against the Indian rulers. The first of such conquests began with Bengal and spread over to the conquest of Mysore and the Marathas. The conquest of Bengal hold an important chapter in the स्टेबलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया। जैसे धीरे धीरे हमने पढ़ा, जितने भी यूरोपियन राइवल्स थे उनको ब्रिटिशर्स ने हटा दिया। अब ब्रिटिशर्स की विक्ट्री जो थी वो बढ़ती जा रही थी एंड इंडियन रूलर हार चुके थे उनके आगे, और जब बंगाल को उन्होंने कॉन्क्यूर किया तो इसका मतलब बहुत सारी पॉलिटिकल पावर ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गई थी। एट दैट टाइम द किंगडम ऑफ बंगाल इंक्लूडेड द प्रोविंस ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। Wars and intrigues soon made the British masters of Bengal. The firmans granted to the English East India Company, however, led to many revolt among the people as Bengal was losing huge amount of revenue. और जो फरमान वहाँ के लोकल रूलर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जारी करते थे, उनसे जो लोकल लोग थे वो बहुत परेशान हो गए थे क्योंकि उन्हें बहुत सारा अमाउंट लूज करना पड़ता था एज ए रेवेन्यू। द ब्रिटिश वर also misusing their right by selling दस्तक a free pass which exempted the company from custom duties। और जो ब्रिटिशर्स थे वो इस चीज़ को मिसयूज़ कर रहे थे, कस्टम ड्यूटी वो पे नहीं कर रहे थे। सिराजुद्दौला अटैक द इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार एंड कैप्चर्ड फोर्ट विलियम। द ब्रिटिश retaliated and captured Kolkata under the leadership of Robert Clive. Clive also accused the Nawab of Bengal of conspiring with the French against the Britishers। और इस तरीके से जो सिराजुद्दौला था उसने एक इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार पर अटैक किया और उसे कैप्चर कर लिया, फोर्ट विलियम को उसने कैप्चर कर लिया। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव फिर से कोलकाता को रिकैप्चर कर लिया। एंड क्लाइव ऑल्सो एक्यूज द नवाब, और नवाब ऑफ बंगाल को एक्यूज कर देता है, क्या इल्ज़ाम लगा के कि जो फ्रेंच हैं उनके साथ मिलकर उसने कॉन्स्पिरेसी की है, साजिश की है ब्रिटिशर्स के खिलाफ। नाउ व्हाट वाज बैटल ऑफ प्लासी? In the year 1757, the armies of the company and the Nawab of Bengal clashed in the famous Battle of Plassey। 1757 में जो आर्मीज ऑफ द कंपनी थी एंड बंगाल का नवाब था, उनके आपस में लड़ाई होती है जिसको बैटल ऑफ प्लासी का नाम दिया गया है। इन दिस बैटल सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड एंड किल्ड। One of the major causes of their defeat was non-participation of the Nawab commander-in-chief मीर जाफर in the battle। क्या कारण था सिराजुद्दौला का इस वॉर में हारने का, बैटल ऑफ प्लासी में हारने का? कि उसका जो कमांडर इन चीफ था मीर जाफर, वो वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करता है। मीर जाफर हैड एंटर्ड इनटू नेगोशिएशन विद द ब्रिटिश। द ब्रिटिश हैड प्रोमिस्ड टू मेक हिम द नवाब ऑफ बंगाल इन रिटर्न फॉर अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी एंड ट्रेडिंग प्राइविलेज। क्या कहते हैं, वो ब्रिटिशर्स के साथ मिल जाता है। ब्रिटिशर्स क्या कहते हैं उसे, मीर जाफर को वो लालच देते हैं कि वो उसे क्या बना देंगे, नवाब ऑफ बंगाल बना देंगे और उसे बहुत सारा मनी और बहुत सारे गिफ्ट भी देंगे। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी, क्या रिजल्ट निकलता है बैटल ऑफ प्लासी का?
द ईस्ट इंडिया कंपनी गोट फ्री ट्रेडिंग राइट्स इन द प्रोविंस ऑफ बंगाल। बंगाल को कॉन्क्यूर करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पर फ्री ट्रेडिंग राइट को एंजॉय करती है, कोई उन्हें कस्टम ड्यूटी नहीं देनी पड़ी। द ब्रिटिश गोट द जमींदारी ऑफ 24 परगनास एंड बिकेम द डी फैक्टो रूलर्स ऑफ बंगाल। 24 परगनास को ब्रिटिशर्स अपने कंट्रोल में ले आते हैं, उन्हें जमींदारी मिल जाती है, इस तरीके से वो डी फैक्टो रूलर बन जाते हैं बंगाल के। द ब्रिटिश वर एबल टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज ऑफ बंगाल टू मेंटेन एंड इक्विप अ लार्ज आर्मी। और ब्रिटिशर्स को जो बंगाल की वेल्थ थी उसका फ़ायदा वो उठाते हैं और अपनी आर्मी को और ज़्यादा इक्विपाइड और मेंटेन कर लेते हैं। टू ब्रिटिश डिड brisk trade and completely drained the wealth of Bengal. This battle therefore marked the beginning of the untold economic miseries and exploitation of the Indians. जो ब्रिटिशर्स थे वो पूरा वेल्थ बंगाल का डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, और शायद यहीं से क्या शुरू होता है, जो इंडियन का मिजरी पीरियड था, एक्सप्लॉयटेशन पीरियड था, वो शुरू होता है। नाउ डिड यू नो Robert Clive came to Madras, now Chennai, from England in 1743 at the age of 18. Robert Clive 18 की एज में इंग्लैंड से मद्रास आता है। When in 1767 he left India, his Indian fortune was worth 4 lakh sterling. In 1772 he was cross-examined by the British Parliament on charges of corruption, but Clive became depressed and committed suicide in 1774. बहुत सारा वेल्थ उसके पास मिलता है तो ब्रिटिशर्स उस पर क्या करप्शन का चार्ज लगा देते हैं, जिससे क्लाइव डिप्रेशन में चला जाता है और 1774 में सुसाइड कर लेता है। बैटल ऑफ प्लासी के बाद हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर। As a result of Battle of Plassey, the British had gained political control over Bengal. They were able to place their puppet rulers Mir Jafar and later Mir Qasim. मीर जाफ़र जैसा कि ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस किया था उसको नवाब बनाने का, तो मीर जाफ़र को वो नवाब बना देते हैं, जो कि एक पपेट रूलर था, ब्रिटिशर्स के कहने पे चलता था। तो मीर जाफ़र, उसके बाद मीर कासिम को वो नवाब ऑफ बंगाल बना देते हैं। इन द बिगनिंग मीर कासिम असाइंड द जाजिर of Burdwan, Midanpur and Chitragaon on the company and gave valuable present to its officers. However, he proved to be a capable ruler who attempted to improve the administration from the very beginning of his rule. He soon grew tired of remaining a puppet, which angered the British. और क्या करता है वो शुरू में अपने ऑफिसर्स को बहुत सारे गिफ्ट भी देता है, प्रेजेंट देता है और एक बहुत अच्छा रूलर बनने की कोशिश करता है, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दी ही वो परेशान हो जाता है ब्रिटिशर्स का पपेट बन के, जिससे जो ब्रिटिशर्स थे वो नाराज हो जाते हैं। मीर कासिम वॉज डिफीटेड इन अ सीरीज ऑफ बैटल बाय द ब्रिटिश इन 1763 और इस तरीके से ब्रिटिशर्स और मीर कासिम के बीच में वॉर शुरू होती है, बैटल शुरू होती है, जिसमें मीर कासिम को हरा दिया जाता है काफ़ी बैटल्स के बाद। एंड ही फ्लैड टू अवध एंड फॉर्म्ड एन अलायंस विद द नवाब ऑफ अवध, और वहाँ पर वो अवध चला जाता है, अवध भाग जाता है, जहाँ पर नवाब ऑफ अवध सिराजुद्दौला के साथ मिलके वो एक क्या बनाता है, अलायंस बनाता है। एंड देयर कंबाइंड आर्मी मेट द ब्रिटिश एट द बैटल ऑफ बक्सर इन अक्टूबर 1764 वेयर द इंग्लिश कमांडर हेक्टर मुनरो डिफीटेड देम। और इस तरीके से मीर कासिम जो नवाब ऑफ अवध शाहजुद्दौला एंड मुगल एम्परर शाह आलम II इनके साथ मिलके एक अलायंस बनाता है, एक एग्रीमेंट बनाता है और एक आर्मी इकट्ठी करता है, जिनकी ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई होती है बैटल ऑफ बक्सर में इन 1764, जहां पर लीडर कौन था ब्रिटिशर्स का, हेक्टर मुनरो, वो उन्हें हरा देता है। नाउ इस बैटल ऑफ बक्सर के क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकले हैं? First, the powerful Nawab of Awadh was left at the mercy of the English. The districts of Kota and the Allahabad were taken from him. जो पावरफुल नवाब ऑफ अवध थे वो भी ब्रिटिशर्स के नज़र में आ जाते हैं और उनको ब्रिटिशर्स अपने अकॉर्डिंग चलने को कह के उनको छोड़ देते हैं, बट जो कोटा एंड इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट थी वो उनसे ले लेता है। द मुगल एम्परर बिकेम द
पेंशनर ऑफ द ब्रिटिश। अब जो मुगल एम्परर थे, जो मुगल राजा रह गए थे, वो ब्रिटिशर कुछ उन्हें पेंशन देते थे और वो उसी अकॉर्डिंग चलते थे। अब वो मेयरली क्या रह गए थे, पपेट ऑफ ब्रिटिशर्स रह गए थे। एंड in the settlement with the Nawab of Bengal, the English got the right of Diwani or the collect revenue in the province of Bengal, Bihar and Odisha। जब नवाब ऑफ बंगाल के साथ एक सेटलमेंट हो जाती है तो ब्रिटिशर्स को एक राइट मिल जाता है, राइट ऑफ दीवानी, जिनसे वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते थे। द मुगल एम्परर ग्रांटेड द जागीर ऑफ द नॉर्दर्न सरकार्स टू द ब्रिटिश। जो मुगल एम्परर थे वो नॉर्दर्न सरकार की जो भी जागीर थी, जो भी जमीन थी, वो ब्रिटिशर्स को दे देते हैं। बोथ द नवाब ऑफ बंगाल एंड द मुगल एम्परर बिकेम डिपेंडेंट ऑन द ब्रिटिश फॉर सिक्योरिटी। अब जो नवाब ऑफ बंगाल थे और मुगल एम्परर थे वो सिक्योरिटी के लिए सिर्फ ब्रिटिशर्स पर ही डिपेंड थे। नाउ ड्यूल गवर्नेंस इन बंगाल। बैटल ऑफ बक्सर से क्या हुआ, एक ड्यूल गवर्नमेंट बन जाती है बंगाल में, जिसमें ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, जिनको राइट था रेवेन्यू कलेक्ट करने का। द राइट ऑफ निजामत इंक्लूडिंग मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, डिस्पेंसेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस एंड दैट ऑफ defending the frontiers remained with the Nawabs, who was paid an annual amount by the British to meet the expenses। और अपने जो प्रोविनेंस है उसको प्रोटेक्ट करना, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, उसको क्रिमिनल जस्टिस से बचा कर रखना, ये किसके हाथ में था, नवाब के हाथ में था। नवाब को इसके बदले ब्रिटिशर्स एक एनुअल अमाउंट पे करते थे। In reality, the East India Company appointed Muhammad Reza Khan to exercise Diwani functions in Bengal. However, the Nawab was also forced to appoint Muhammad Reza Khan to look after Nijamat functions. Hence, the effect both Diwani and निजामत केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश। इस तरीके से दोनों दीवानी एंड निजामत ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ जाते हैं। दिस एग्रीमेंट ऑफ ड्यूल गवर्नमेंट was put to an end under Governor General Warren Hastings in 1772. Calcutta was made the capital or the seat of the power of the British in India until 1912 when Delhi was declared as the capital of India। और इस तरीके से 1912 में दिल्ली को इंडिया का कैपिटल बना दिया जाता है एंड कैलकाटा जो पहले कैपिटल थी वहाँ से चेंज होके दिल्ली को कैपिटल बना दिया जाता है। विद द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल एंडेड द फर्स्ट फेज ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। इस तरीके से जब बंगाल को कॉन्क्यूर कर लेते हैं तो इंडिया को, पूरे इंडिया को कॉन्क्यूर करने का जो सपना है वो अब ब्रिटिशर्स का ऐसा लग रहा था पूरा होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट फेज वो पार कर चुके थे। They were now virtual ruler of Bengal, Bihar and Odisha. The Nawab of Awadh and Karnataka were their dependents. The Mughal emperor was their pensioner. The next and final phase of British conquest of India lasted from 1765 to 1857. In these almost 100 years, they brought the होल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट अंडर देयर रूल। और इस 100 साल के पीरियड में 1765 टू 1857 पूरा ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया जो है वो उन्होंने अपने अंडर ले लिया था। दे डिड दिस यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स वार्स, अलायंस एंड एनेक्सेशन। और ये कैसे उन्होंने पॉसिबल हो पाया, कैसे उन्होंने किया, बाय द मेथड ऑफ अलायंस एंड एनेक्सेशन। नाउ कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैसूर। One of the strongest opposition that the British had to face in India came from Mysore under the leadership of Hyder Ali and his son Tipu Sultan। जो मैसूर से जो दो हैदर अली खान और टीपू सुल्तान जो स्ट्रॉन्ग वॉरियर थे, उनको भी ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा अपोजिशन दी। एंग्लो मैसूर वॉर, जिनके लिए एक वॉर होती है, दैट इज़ एंग्लो मैसूर वॉर from 1766 to 1799. Hyder Ali won the first Mysore War 1767 to 1769, first
मैसूर की जो वॉर होती है उसमें हैदर अली खान जीत जाता है। ही डाइड आफ्टर द डिफीट ड्यूरिंग द सेकेंड मैसूर वॉर एंड हिज सन टीपू सुल्तान कैरिड ऑन द वॉर अंटिल पीस वॉज मेड। और उसके बाद सेकेंड वॉर में वो मारा जाता है हैदर अली खान, और उसके बाद टीपू सुल्तान उस वॉर को आगे कैरी करता है। ही रिस्ट्रिक्टेड स्पाइस ट्रेड विद ब्रिटिश ट्रेडर्स इन द मालाबार कोस्ट, और टीपू सुल्तान ब्रिटिश ट्रेडर्स पर रोक लगा देता है कि मालाबार कोस्ट से वो कोई स्पाइस ट्रेड नहीं करेंगे। एंड अराउंड दिस टाइम ही मेड फ्रेंडली रिलेशंस विद द फ्रेंच इन इंडिया एंड मॉडर्नाइज हिज आर्मी विद देयर हेल्प। और इन बिटवीन वो फ्रेंच के साथ, जो कि राइवल थे ब्रिटिशर्स के, उनके साथ अच्छे रिलेशन बना लेता है ताकि वो आर्मी में उनकी हेल्प कर सके। द निज़ाम एंड मराठास सपोर्टेड the company. Tipu was defeated and had to pay a huge sum of money, giving away large parts of his kingdom and giving 2 of his sons as hostages of the British camp. लेकिन जो निज़ाम और मराठास थे वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते हैं, तो टीपू सुल्तान हार जाता है और उसको हार के बदले बहुत सारा पैसा देना पड़ता है और अब पूरा किंगडम देना पड़ता है और अपने 2 बेटे एज अ होस्टेज ब्रिटिशर्स को देने पड़ते हैं। In 1798, Lord Wellesley asked Tipu to accept the subsidiary alliance, but Tipu refused. A war was declared. Tipu Sultan was killed in 1799, defending his capital, Seringapatam. Now, Mysore was placed under the former ruling dynasty of the Wadiyars, and the subsidiary अलायंस वॉज इम्पोज्ड ऑन द रूलर। और इस तरीके से सब्सिडरी अलायंस को टीपू सुल्तान साइन करने से मना कर देता है और एक वॉर होती है, टीपू सुल्तान उसमें मारे जाते हैं। इस तरीके से जो पूरा मैसूर था वो भी ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ जाता है। नाउ वॉर्स अगेंस्ट मराठास। जो मैसूर की तरह जो मराठास के साथ जो ब्रिटिशर्स की वॉर हुई वो भी बहुत चैलेंजिंग थी। द ब्रिटिश रिगार्डेड the Marathas as the greatest obstruction in the fulfillment of their ambition of building an empire in India, and therefore were keen to weaken their power at the earliest opportunity. They got this opportunity very soon after the death of Peshwa Madhav Rao in 1772. मराठा जो कि एक स्ट्रॉन्ग किंगडम था, जो कि ब्रिटिशर्स के लिए एक डर भी था, लेकिन पेशवा माधव राव की डेथ के बाद उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है ब्रिटिशर्स को, और वो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी में ही क्या चाहते थे, मराठास को हरा दें। नाउ एंग्लो मराठा वॉर होती है 1775 टू 1818। The Marathas and the British fought 3 Anglo-Maratha war before the British assumed control over their kingdom. 3 वॉर होती है continuously. The British supported the claim of Raghunath Rao against Peshwa Madhav Rao II, an infant son of the deceased Peshwa. This led to the first Anglo-Maratha war, where the British were forced to recognize Madhav Rao II as the Peshwa, जहाँ पर Britishers फोर्स टू रिकॉग्नाइज माधव राव टू को एज अ पेशवा के लिए मजबूर करते हैं। हाउएवर आफ्टर द डेथ ऑफ नाना पद्माविस who led the first battle against the British, the Marathas started fighting amongst each other for power. When the British saw this, they took advantage of the situation. नाना पद्माविस की डेथ के बाद जो मराठास थे वो आपस में ही लड़ने लग जाते हैं कि पावर किसको मिलेगी। ब्रिटिशर्स इसका फ़ायदा उठाते हैं और अपनी सुपरमेसी वहाँ पर जाहिर कर देते हैं और इस तरीके से मराठा एम्पायर को एनेक्स कर लेते हैं। नाउ डिड यू नो, after the Third Maratha War 1817 to 1818, Peshwa Bajirao II was deposed and pensioned off to Bithun near कानपुर। जो थर्ड मराठा वॉर होती है जिसमें पेशवा बाजीराव ब्रिटिशर्स के साथ पेशवा बाजीराव II वॉर कर रहा था, उसको डिपोज कर दिया जाता है और उसको कानपुर में एज अ पेंशन रहने पर मजबूर कर दिया जाता है। नाउ अदर मेथड्स ऑफ एनेक्सेशन। फर्स्ट है सब्सिडरी अलायंस। Lord Wellesley was the Governor General of India from 1798 to 1800. He was an ambitious man. One of the great master strokes of his was the introduction of subsidiary alliance system. Subsidiary, its main purpose was to secure resources for the company and oust other foreigners from Indian states
so as to make the British company the sole arbiter in the affairs of Indian state and thus enable the company to gain supremacy over whole of India. लॉर्ड वेल्सली ने सब्सिडरी अलायंस शुरू किया था, जो कि एक एम्बिशियस मैन था। सब्सिडरी अलायंस में वो क्या चाहता था कि कंपनी के पास हर एक सिक्योर रिसोर्सेज रहें ताकि वो वॉर को ईजिली जीत पाएं और अपनी ब्रिटिश कंपनी को स्ट्रॉन्ग कर पाएं। अंडर दिस सिस्टम द ब्रिटिश ग्रांटेड द प्रोटेक्शन to the local ruler against any attack by local or foreign power. The rulers were given a set of conditions to comply with the British orders. They were not allowed to negotiate with any other power without British permission. The British reserved the power to depose a ruler if they were dissatisfied with the administration. The Nizam of Hyderabad was the first to accept the subsidiary alliance in 1798. He ceded to the British some territories including Belray. The Nizam example was followed by many other rulers including the Marathas. Under the alliance system, Tanjore and Surat were annexed in 1799 and Karnataka in 1801. Subsidiary alliance में क्या लिखा होता था? ये एक एग्रीमेंट था जो ब्रिटिशर्स और लोकल रूलर के बीच में होता था, जिसमें क्या लिखा होता था कि लोकल रूलर पर कोई भी फॉरेन अटैक होगा या कोई भी वॉर अगर करता है या इंटरनल या आउटसाइड से, तो ब्रिटिशर्स उसको प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन उसके बदले जो ब्रिटिशर्स हैं उनको वो क्या देंगे, कुछ इम्पोर्टेंट स्टेट देंगे। और किसी भी दूसरे फॉरेनर से बात करने से पहले वो किसकी परमिशन लेंगे, ब्रिटिशर्स की परमिशन लेंगे। तो सब्सिडरी अलायंस को सबसे पहले साइन किसने किया था? निजाम ऑफ हैदराबाद ने साइन किया था, जिसके अंडर उसने बहुत इंपॉर्टेंट टेरिटरी बेलरी को गवा दिया था। इस तरीके से उसके बाद काफ़ी राजाओं ने, काफ़ी रूलर्स ने ये सब्सिडरी अलायंस साइन किया और जो इम्पोर्टेंट उनके पास सिटीज़ थी उनको अपने हाथ से जाने दिया। सेकेंड, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। सेकेंड पॉलिसी क्या थी? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। The British Governor General Lord Dalhousie employed the doctrine of lapse to annex some territories. The doctrine stated that a dependent state would pass to the company. If the ruler died without a natural heir, it refused to accept the age-old Hindu and Islamic tradition deprived adopted son the right to inherit the throne. डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में क्या लिखा था? अगर कोई कि राजा की डेथ हो जाती है, अगर उसका कोई सन नहीं होता है, तो हेरिडिटरी उसको चीज़ें नहीं अगर मिलती हैं, तो ऑटोमेटिकली वो जो जगह है, वो जो एम्पायर है, वो किसके अंडर चला जाएगा? ब्रिटिशर्स के अंडर चला जाएगा। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ऐसे बहुत सारे राजा थे जिनके हेरिडिटरी रूलर नहीं थे, तो बहुत सारी जो टेरिटरी थी वो ब्रिटिशर्स के अंडर में चली गई थी। अदर मेथड्स, the territories annexed under the doctrine including Satara, Jaipur, Udaipur, Sambalpur, Nagpur, Bhagat, Jhansi, Karnataka and Tanjore. The title of their rulers were abolished and some of them were also given pension. The abolition of titles was also used as a method of annexation. Other methods employed included misgovernment, which had applied in the case of Awadh, annexed in 1856. इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड उन्होंने बना रखे थे ताकि वहाँ सोसाइटी को उस जगह को एनेक्स किया जाए, जीता जाए, उनको हड़पा जाए। जैसे कि एक मिस गवर्नमेंट की थी, अगर जो ब्रिटिशर्स उस जगह की गवर्नमेंट से सेटिस्फाई नहीं होते थे तो उसको भी वो एनेक्स कर लेते थे। फॉर एग्जांपल जो अवध है उसका एनेक्सेशन कैसे हुआ था? बाय द मिस गवर्नमेंट ऑप्शन। जहाँ पर कोई गवर्नमेंट नहीं होगी, जहाँ पर मिस गवर्नमेंट होगी, वो चीज़ें किसके अंडर आ जाएंगी? ब्रिटिशर्स के अंडर आ जाएंगी। Now the claim to paramountcy. Lord Hastings, who was the Governor General from 1813 to 1823, initiated the policy of paramountcy. It claimed that the power of the company was paramount and superior to the Indian state. इसमें पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी में क्या लिखा होता था? जो पावर ऑफ कंपनी है, यानी ब्रिटिशर्स की जो पावर है वो सबसे ऊपर रहेगी। एंड इट वॉज जस्टिफाइड इन एनेक्सिंग द इंडियन स्टेट इफ इट्स इंटरेस्ट वॉज थ्रेटन्ड। This process was challenged when the British tried to annex the small state of Kittur in Karnataka. Rani Chanmas took up anti-British resistance. She died in
prison in 1829. The struggle was continued by Raina, a poor चौकीदार. He was caught and hanged in 1830. जो लोग इसको पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी यानी ब्रिटिशर्स को जो पैरामाउंट नहीं मानेंगे उनको वॉर करनी होगी. जैसे एक रानी चमनास थी जो कित्तूर की रानी थी, उसको भी वो अंग्रेज़ों के खिलाफ थी, ब्रिटिशर्स के खिलाफ थी, तो उसको प्रिजन में डाल दिया था जहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है. उसके बाद जो उनका चौकीदार था वो उस वॉर को कंटिन्यू करता है, लेकिन जल्दी ही उसको पकड़कर हैंग कर दिया जाता था. The company also entered into war with Afghans. In the 19th century, the Russians were expanding their territories. East India Company feared that they might enter India from northwest. They fought a prolonged war with Afghanistan in 1838 to 42 and established their indirect control. Sindh was annexed in 1843. After the death of Maharaja Ranjit Singh, the East India Company fought two prolonged wars with the Sikhs and Punjab was annexed by the company in 1849. जब ब्रिटिशर्स को पता लगता है कि अफ़गानिस्तान से भी कोई रूल करना चाहता है तो अफ़गान के साथ एक लंबी लड़ाई होती है जिसमें ब्रिटिशर्स सिंध को एनेक्स कर लेते हैं और महाराजा रंजीत सिंह की डेथ के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो सिख एंड पंजाब जो है उसको भी एनेक्स कर लेती है. नाउ cause of the British success. इतनी सारी बैटल हमने पढ़ी हैं, इतनी सारी हमने पॉलिसीज़ पढ़ी हैं, तो क्या कारण रहा है ब्रिटिशर सक्सेस का? ब्रिटिशर सक्सेस का क्या कारण रहा है? मेनली कारण रहा है जो इंडियन प्रिंस थे, राजपूत या मराठास के कोई भी जो प्रिंस थे या रूलर थे वो यूनाइटेड नहीं रहे और अलग अलग लोग अलग अलग पॉलिसी को अडॉप्ट करते रहे अपने बेनिफिट के लिए बिना कंट्री का सोचे हुए. एज द इंडियन रूलर लैक्ड नेशनल पर्सपेक्टिव, द कॉलोनियल सिस्टम स्प्रेड into tentacles or Indian rulers from this weak point. The cronies of the Indian prince conspired against their own ruler and the British took full advantage of this situation. जो लोकल रूलर थे, जो इंडियन प्रिंस थे, उनके आपस में ही नहीं बनती थी, अपने ही थ्रोन को एनेक्स करने के लिए वो आपस में साजिशें करते रहते थे जिसका फ़ायदा ब्रिटिशर्स ने उठाया. They possessed a band of dedicated officers, disciplined and well versed in warfare skills. और अपनी आर्मी में वो डिसिप्लिन्ड और एडुकेटेड लोग रखते थे जो कि वेल वर्स्ड इन वारफेयर होते थे, तो इसीलिए उनकी मिलिट्री पावर बहुत स्ट्रॉन्ग थी जो कि जो लोकल प्रिंस थे उनकी वार से जो उनकी आर्मी थी उनसे भी मैच नहीं करती थी. अदर कॉजेज रिलेटेड टू द लैक ऑफ एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड oppressed revenue collection system of Marathas. The British also gave a full play to divide and rule policy and various other policies, the potential of which the Indian ruler failed to understand in time. और ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने टाइम टू टाइम बहुत सारी पॉलिसी बनाई जिसमें से एक थी डिवाइड एंड रूल, जिसको जो इंडियन थे वो समझ नहीं पाए कि उनके बीच में फूट डालो और राज करो. तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स के सक्सेस का क्या कारण था? जो इंडियन रूलर की वीकनेस थी, वो समझ नहीं पा रहे थे उनकी चालें. दैट वाज द मेन रीजन. नाउ कम टू द की पॉइंट्स. The Europeans power like the British, French, Portuguese and Dutch came to India as traders in the 17th century. The rivalry to monopolize the trade with India brought these power with constant conflict with each other. The British defeated the French in the Carnatic Wars and established their supremacy in the Indian subcontinent. A series of wars with Bengal, Mysore, Marathas and other Indian rulers and the French helped the British establish their strongholds in India. And the methods of expansion followed by the British included direct annexation, subsidiary land and the doctrine of lapse. ओके, आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे.